छत्तीसगढ़ में केरल की 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी पर बुधवार को संसद में जमकर बहस हुई। ननों की गिरफ्तारी की गूंज आज लोकसभा तक पहुंची। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और चेताया भी कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो केरल में स्थिति बेकाबू हो सकती है। इधर ननों की जमानत याचिका अब सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट ने कहा कि हमें यह प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं है। यह मानव तस्करी से जुड़ा मामला है जिसकी सुनवाई बिलासपुर की एनआईए कोर्ट में हो सकती है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बुधवार को दुर्ग की स्थानीय अदालत ने ननों की गिरफ्तारी के मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि मानव तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसी को पूरी जानकारी साझा करे। जब तक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक ननों को जेल में ही रखा जाएगा। अब इस मामले में जांच के बाद ही जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसी के आधार पर ननों की जमानत का फैसला होगा। बहरहाल आज लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हुआ, आइए जान लेते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शून्यकाल के दौरान आरोप लगाया कि दोनों ननों के साथ एक दक्षिणपंथी संगठन के लोगों ने मारपीट की और राज्य पुलिस ने उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने तत्काल दोनों नन की रिहाई की मांग की। वेणुगोपाल ने कहा कि 25 जुलाई को केरल की रहने वाली कैथोलिक नन वंदना और प्रीति पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक दक्षिणपंथी संगठन के लोगों ने हमला किया। उन्होंने कहा कि दोनों नन क्षेत्र में कैंसर रोगियों की मदद और अन्य सेवा कार्यों में लगी हुई थी। वेणुगोपाल के अनुसार जब ननों पर स्टेशन पर हमला हुआ तो पुलिस आई और बिना किसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुनिए सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर और क्या कहा है। A deeply disturbing and shocking incident that occurred on July 25, 2025 at Durg railway station in Chhattisgarh. Madam, on that day, 2 Catholic nuns, Sister Vandana and Sister Preeti, belonging to the Assisi Church Sisters of Mary Immaculate, a Zero Malabar congregation based in Cherthala, Kerala, were attacked and falsely accused of religious conversion and human trafficking by Bajrang Dal. Shame. Madam, they belongs to my constituency. This institution belongs to my constituency. Madam, do you know what they have done? They are helping the cancer patients, that to be a terminating patients, and they do maximum palliative care services. In Kerala, madam, our BJP friends, they used to go to Christmas time with a cake. They used to go to Christmas cake. But now what is happening? Last 5 days, these 2 innocent nuns are in jail without any reason. Without any reason. What a cruelty this is. If the country is a banana republic, without any reason, you are keeping them in the jail. Chief Minister is repeating the same version. The Chief Minister of Chhattisgarh is repeating the same version of Bajrang Dal. What a shame activity, sir, madam. How can we allow it? Therefore, I think this is a high time to act upon. If the government is not acting, the situation will go out of control, madam, because the situation in Kerala is also burning. Everywhere agitation is happening. Madam Chairperson, ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദുർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 2 കന്യാസ്ത്രീമാരെ യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത, യാതൊരു തരത്തിലും നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാത്ത 2 കന്യാസ്ത്രീമാരെ നിയമവിരുദ്ധമായി ഛത്തീസ്ഗഡ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ക്യാൻസർ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുക, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുന്ന കന്യാസ്ത്രീമാരെയാണ് അന്യായമായി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഈ കന്യാസ്ത്രീമാരെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. इसके अलावा एर्नाकुलम केरल से कांग्रेस के सांसद हैबी एडन ने भी केरल की 2 नन सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर गलत तरीके से गिरफ्तार किए जाने की
बात कही। Ma'am, on 25th July, two nuns from Kerala, Sister Preeti Mary and Sister Vandana Francis, were wrongfully arrested in Chhattisgarh Durg railway station. Ma'am, these nuns have been doing exemplary work in terms of education, in terms of healthcare, but the Bajrang Dal workers have made pressure on the government and jailed them for the last 6 days. These nuns have been since false accusations have been made, cases have made wrongfully on the basis of human trafficking and also anti-conversion. Sir, madam, you should understand this is your political case. The माननीय BJP. सदस्यों, जिन माननीय सदस्यों के नाम सूची में हैं, उनको सभी सदस्यों को कल मौका दिया जाएगा। इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए दुर्ग से बीजेपी के सांसद विजय बघेल ने कहा कि बस्तर की आदिवासी बच्चियों को बहला फुसलाकर आगरा ले जाया जा रहा था, जिसके कारण ननों की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने भ्रम फैलाया है। सुनिए विजय बघेल क्या कह रहे हैं। अभी सुबह जब हम यहाँ शून्यकाल शुरू हुआ तो जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो 25 जुलाई को घटना घटी, हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की 3 भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहाँ पे 2 नन मिली और उनको आगरा ले जाने के लिए उन्होंने टिकट कराया था। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। ये 8:30 बजे सुबह की बात है। और जब उससे पूछा गया तो वो रो के सहमी हुई, बोली कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूँ। उनके जीजा जी से बात हुई, उनका नंबर उपलब्ध कराई वो, फिर उनके परिवार वालों से बात हुई। उसके बाद पुलिस आई, जीआरपी थाना के अधिकारी कर्मचारी आए, बजरंग दल के भी साथी आए, बहुत सारे जिम्मेदार लोग आए। सोशल मीडिया में ये खबर फैलने लगी और बहुत लोग इकट्ठा हो गए और उस बीच में पूरी छानबीन हुई। वो जो 2 नन हैं, एक जबलपुर से आई थी, एक आगरा से आई। वो क्यों आई? पहली बार छत्तीसगढ़ आई और कहीं नहीं रुकी, स्टेशन में ही रुकी। ये प्रश्न उठता है माननीय सभापति महोदय, और इसको हमारे माननीय वरिष्ठ सांसदगण जो जिम्मेदार हैं, नेक पद में रह चुके हैं, वो इसको भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के सांसद, खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी इसमें ट्वीट की है। ये करके एक भ्रामक प्रचार छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र चल रहा है और वहां पे 2 धर्मों के बीच में लड़ाने के एक प्रयास इन कांग्रेस के जिम्मेदार सांसदों द्वारा किया जा रहा है। जो रवि निगम कर है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिना जानकारी के, क्या है आपसे? आप उन ट्रेन को जानती है? कहां से आई? जब आपके केरल की लड़कियां जब यहाँ आई तो क्या हम छत्तीसगढ़ की अपनी बेटियों का इज्जत नहीं बचाएंगे? हमारी आदिवासी बेटियों का हम सुरक्षा नहीं करेंगे? हमारे माननीय महेश कश्यप सांसद बस्तर के, जिनके क्षेत्र से वो लड़कियां लाई गई। धन्यवाद, धन्यवाद जी। इधर छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार नन मामले को लेकर संसद भवन परिसर में आज भी विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सभी ने दुर्ग में गिरफ्तार हुई नन को रिहा करने की मांग की। बीजेपी सरकार से इधर रायपुर में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों का दल भी राजधानी पहुंचा था। इस दल में वरिष्ठ नेत्री वृंदा कराद भी शामिल थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए।
उनका कहना था कि लड़कियां बालिग हैं और आदिवासी युवतियों को भी बाहर जाकर काम करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल के दबाव में कार्रवाई की गई है, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और बंद कमरे में पुलिस के सामने पीटकर बयान बदलवाने की कोशिश की गई है। आइए सुनते हैं नेत्री वृंदा करात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा। 2 महिलाओं को जो नन्स है और 3 आदिवासी एडल्ट महिलाओं को जो युवती है लेकिन एडल्ट है, हम आपसे पूछते हैं उनका अधिकार नहीं है वो कहीं भी देश में जाके नौकरी ढूंढे? उनको भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आज एक नया नियम बन गया हमारे देश में, तो ये औरतों का भी सवाल है। जहां माइनॉरिटीज का सवाल है, ये औरतों का भी सवाल है। एक एडल्ट लड़की आदिवासी गरीब है, इसलिए उसके ऊपर 10 बार उसको प्रमाण पत्र आज देना पड़ेगा। आपने जांच की या बजरंग दल के कहने पर आपने किया? मैं ये मानती, आप जांच करते, आप इन्वेस्टिगेशन करते, अगर आपको सबूत नहीं मिलता, आपको जो भी केस लगाना है आप कीजिए, लेकिन वहां बजरंग दल की उस, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूंगी, कानून के बहुत दूर गैर कानूनी गुंडागर्दी, उसके आधार पर आप एफआईआर लॉन्च करेंगे। कल ये आ जाएंगे यहाँ और कहेंगे ये सारे लोग राष्ट्र विरोधी है, उनके कहने पर हमारे ऊपर केस लगेगा। आज ये कानून बनेगा तो ठीक है, आप बनवाइए। आप कहिए, दुनिया में जाके कहिए, मोदी जी तमाम देशों में घूमकर कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, हम लोग सब एक परिवार है, वसुदेव कुटुंब, और यहाँ क्या हो रहा है? तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं, एडल्ट आदिवासी औरत के अधिकार पर आप हमला कर रहे हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, और जब वो आपको बयान दे रहे हैं कि हम स्वयं जा रहे हैं, तो आप उनको पीटोगे। आपको पता है, आपको थोड़ी सी भी उसमें हमदर्दी नहीं जगती है। वो लड़कियों को पीटा गया बयान बदलवाने के लिए, उनको अलग रखा गया पेरेंट्स से, अलग 3 दिन, और कल रात बगैर बताए, क्योंकि हम लोग डेलीगेशन में आए हैं, उनको तुरंत यहाँ लेकर चले गए नारायणपुर, और वहां भी साखी केंद्र में उनको बंद करके रखा है। ये कौन सी कानून है? बीजेपी खुद केरल में कह रही है सब कुछ जो हुआ है वो गलत हुआ है। हमारी बात आप नहीं सुनेंगे, आप उनकी बात सुनो। तो मैं समझती हूँ कि अभी पिनराई विजयन जी, मुख्यमंत्री जी ने भी नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट की है, तो हम देखते हैं यहाँ आज अगर हम मुख्यमंत्री से मिलने का मौका होता, हम भी उनको बताते हैं। तो अभी क्या होगा नहीं होगा हमें देखना है, लेकिन हमारी तरफ से जो भी फोरम हमारे लिए प्राप्त है, हम सलाह उठाएंगे। वृंदा करात आज दुर्ग जेल भी पहुंची थी, जहां गिरफ्तार दोनों नन से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने सरकार पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाया। हम यहाँ 4 सांसद, हमारी बहन एनी राजा और हम लेफ्ट पार्टीज और केरला कांग्रेस मानी की लीडर आदरणीय जोशी के साथ यहाँ आए हैं। जो हमने देखा, जो हमने सुना, हम बहुत डीपली डिस्टर्ब्ड है। जो यहाँ एक नकली बनाई गई केस के ऊपर 2 सिस्टर्स, 2 नन्स जो सालों से गरीबों के बीच रहकर काम कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और बीजेपी की संकीर्ण एजेंडा के तहत आज जेल में डाले गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्ना लाल का कहना है कि इस मामले का धर्मांतरण या मानव तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। 2 नन्स हैं, ये दोनों नन्स जो हैं वो आगरा में मिशनरी अस्पताल में काम करती हैं। एक नन जो है उसमें से वो रजिस्टर्ड क्वालिफाइड नर्स है और दूसरी जो है वो वहाँ की रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, जो दवाई देता है उसको फार्मासिस्ट कहते हैं। तो ये दोनों उन अस्पताल, आगरा के अस्पताल में ये अपनी सेवाएं देती हैं। उस अस्पताल में
मरीजों को खाना खिलाना पड़ता है, तो वहाँ पे एक केटरिंग यूनिट भी है और उस केटरिंग यूनिट के लिए उनको कुछ व्यक्तियों की ज़रूरत थी जो वहाँ पे खाना पकाने से लेके मीनियल काम करें। तो उस अस्पताल ने सबको जानकारी भेजी कि ऐसे कुछ व्यक्तियों की हमें ज़रूरत है। तो नारायणपुर से कुछ परिवार वहाँ से तैयार हुए कि हमारी बच्चियाँ तो यहाँ पे सड़ जाएंगी, यहाँ पे 1000-2000 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं, तो वहाँ 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है और उनको रहना खाना भी रहेगा और अस्पताल में रहेंगे और काम करेंगे। ये इनसे अनुबंध हुआ। इस अनुबंध के तहत उनके माँ बाप को भी बुलाया गया, उनके माँ बाप ने भी अपनी सहमति दी, उनके पिताजी ने भी सहमति दी और वो सब तीनों लड़कियां और वो एक लड़का और यहाँ रायपुर तक आए और रायपुर में नन्स के साथ ये लोग आगरा की ट्रेन का इंतजार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म कर रहे थे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दोहरापन नहीं चलेगा। विष्णुदेव साय जी और विजय शर्मा जी, भाजपा केरल के अध्यक्ष, कह रहे हैं कि गिरफ्तार की गई नन का धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गिरफ्तार की गई नन धर्मांतरण में लिप्त हैं। आप अपना मत स्पष्ट कीजिए, प्रदेश जानना चाहता है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क और संसद तक में चल रही इन बहसों के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि इस मामले में पुलिस की जांच में क्या तथ्य आते हैं और दोनों गिरफ्तार ननों की जमानत पर अदालत का क्या रुख होगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।